Thank you students for clicking this channel. So today we are going to start algebra chapter 4 ratio and proportion practice set 4.3. So to solve this practice set we have to learn some properties of this chapter, and the properties goes like this. Properties of equal ratio means ये जो अपॉन में दिया है ना वो इक्वल कब होगा. सो दीज आर दी नेम. सो एक करके हम पढ़ते. द फर्स्ट वन इज इन्वर्टेंडो. इन सिंपल फॉर्म इन्वर्टेंडो मीन्स इनवर्स. इनवर्स यानी डिनोमिनेटर अप साइड हो जाता है और न्यूमरेटर डाउन साइड. सो इन्वर्टेंडो क्या कहता है दैट इफ यू हैव अ रेशियो ए अपॉन बी. ए अपॉन बी मतलब अगर आपके पास कोई नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 2/5 is equals to 3/6. So by using invertendo, with the help of invertendo हम क्या करेंगे, उसको इनवर्स में लिख लेंगे. यहाँ पे 2/5 का एग्जाम्पल लिया था ना, तो दैट मीन्स 5/2 it will become. So it will be like upside down. A upon B becomes B upon A and C upon D becomes G upon C. Okay. Similarly, now alternando. Now what does alternando says? Alternando says that if you have A upon B equals to C upon D, then by using alternando properties means alternando formula use करके आप क्या कर सकते हो, ये जो अपॉन में हो उनको सामने सामने लिख सकते हो. यानी A अपॉन B है ना तो इट इज A इक्वल्स टू B एंड C अपॉन D है ना तो C इक्वल्स टू D. आइदर यू कैन शो इन दिस फॉर्म ऑल्सो कि ये B यहाँ पे चला गया, C इधर आ गया. देखो B वेंट देयर, C केम हियर. सो क्या बन गया, A अपॉन B का हो गया A इक्वल्स टू B एंड C अपॉन D बन गया C इक्वल्स टू D. Now componendo. What does componendo says that if you have A upon B equals to C upon D, तो by componendo, by using this formula what we can do, ये जो डिनोमिनेटर में है B वो अपसाइड जाएगा, ऐड होगा A प्लस B अपॉन B. सिमिलरली ये इक्वल टू के इस तरफ C. नाउ इक्वल टू मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. वेन एवर यू हैव इक्वल टू, so this is your left hand side, this is your right hand side. So right hand side also C upon D है ना, तो नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर गया C plus G upon D. This is componendo. Okay, and then dividendo. So dividendo में componendo में addition हो रहा है. So in dividend we have to do subtraction. A upon B equals to C upon D. So by using dividendo formula हम क्या कर सकते हैं, A माइनस बी जो डिनोमिनेटर में अपॉन बी एंड देन C माइनस जी अपॉन डी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. एंड द लास्ट फॉर्मूला इज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो. सी कॉम्पोनेंडो में हमने क्या देखा, एडिशन हो रहा है. डिविडेंडो में हमने क्या देखा, सबट्रैक्शन हो रहा है. सो यही दो यूज करेंगे, componendo and dividendo together. What we will show that A upon B equals to A plus B, A minus B, then C upon D, C plus D, C minus D. Okay, I hope this property you have understood. ये property आपको अच्छे से बाहर कर लेना है, because with the help of this property we are now going to solve the practice set 4.3. Okay, so here if A upon B is equals to 7/3 means यहाँ A का वैल्यू 7 दिया है, B का वैल्यू 3 दिया है. So then find the value of the following ratio. So this is the first question, 5A plus 3B upon 5A minus 3B. See क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो है. ओके, ये एक सम्स by using this property you can solve. देखो इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हो सकता है या डिनोमिनेटर का डिविडेंडो या ऑल्टरनेंडो. सो लेट्स सी, हम लोग कोई एक मेथड के थ्रू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में A अपॉन B
value is given 7/3. This is given to us. Okay, so therefore now see, we know that 5a upon 3b will be equals to 5 into a का वैल्यू क्या है 7, 3 into b का वैल्यू क्या है 3. Okay, so 5 7s are 35 and 3 3s are 9. So now see, we know that 5a is 35 and 3b is 9. हमको 5a और 3b का वैल्यू मिल गया. So now further what we will do, therefore ये जो 5a plus 3b upon 5a minus 3b, so equal to what we will do, 5a is what 35 plus 3b is what 9 upon 35 minus 9. So what we are doing here, we are using formula componendo and dividendo. Componendo, and by using componendo and dividendo. So वो therefore यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5a plus 3b upon 5a minus 3 will equals to, after adding this we get 44 and after subtraction we get 26. So ये जो वैल्यू मिला, we have to check whether it is divisible by any number or not. So ये दोनों even number है, so that means it is divisible by 2. 2 1s are 2, 2 3s are 6. So same 2 we will use, 2 2s are 4, 2 2s are 4. So here answer is 22/13. So therefore final answer 5a plus 3b upon 5a minus 3b equals to 22/13. Okay. Now see second sum. Second sum is also similar. यहाँ पे भी देखो प्लस और माइनस दिख रहा है, तो अगेन कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, बट पहले ए और बी का वैल्यू ढूंढेंगे. सो ए अपॉन बी हमको शुरू में दिया गया हेडिंग में, इट इज 7/3. दिस इज गिवन. सो देयरफॉर बट यहाँ पे ए स्क्वायर है. ओके, सो व्हाट वी विल डू, a square upon b square, so that means 7 square upon 3 square. So 7 7s are 49, 3 3s are 9. So a square upon b square का वैल्यू क्या आया, 49/9. ओके, यहाँ पे आएगा बाय स्क्वायरिंग. ओके, so therefore 2a square plus 3b square upon 2a square minus 3b square will be equals to 2 into a कितना मिला, a square 49 plus 3 into b is 9, then 2 into 49 minus 3 into 9. What we did, क्या किया हमने, ये a square है उसकी जगह में वैल्यू लगाया और बी स्क्वायर है उसकी जगह में वैल्यू लगाया. सो नाउ आफ्टर एडिंग द वैल्यू वी गेट, यहाँ पे आंसर क्या मिलता है, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into 49 is 98 plus 3 9s are 27. Again 98 minus 27. That will be equals to, when you add this it will be 125, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे it will be 71. यहाँ पे रीजन दोगे बाय कॉम्पो एंड डिविडेंडो. ओके, कॉम्पो एंड डिविडेंडो.
So here we get the answer. आंसर मिल गया हमको. Only stepwise you have to go. Okay. Third sums a cube minus b cube upon b cube. Now see, this is by dividendo. इसमें माइनस हो रहा है तो डिविडेंडो. So यहाँ पे क्या करेंगे? We know that a upon b value is given 7/3. This is given to us. So now a cube and b cube. So therefore a cube upon b cube. So that means 7 का cube. So 7 का cube and 3 cube. So cube of 7 is 343 and 3 3 are 9, 9 3 are 27. So this is the cube by cubing both the side. So after this what we will do, हम ये solve करेंगे that a cube minus b cube upon b cube. So that will be equals to 343 minus 27 upon 27 by dividendo. Okay. Okay. Now here you can write reason that by cubing both side. नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. Giving reason is good. So after subtraction we get, नीचे तो कुछ नहीं होगा. It will be as it is now. 343 minus 27 equals to 316. So this is the answer. Okay. Okay. So fourth one. 7a plus 9b upon 7a minus 9b. So a upon b is given 7/3. This is given to us. So therefore 7a upon 9b. So that is 7 into 7 upon 9 into 3. क्या किया हम लोगों ने? a की जगह में वैल्यू लगाया एंड b के जगह में. So 7 7s are 49, 3 9s are 27. So now what we will do? ये componendo dividendo. So therefore 7a plus 9b upon 7a minus 9b equals to equals to 49 plus 27 upon 49 minus 27. Here reason by compo and dividendo. Okay. So therefore 7a plus 9b upon 7a minus 9b equals to, when you add this 49 plus 27 equals to 76 and this equals to 22. Again this is even number. So 2 1s are 2 1s are, 2 3s are, 2 8s are. So final answer is 7a plus 9b upon 7a minus 9b equals to 38 upon 11. Okay. Here we come to end of first question. Second subheading, 15a square plus 4b square upon 15a square minus 4b square is equals to 47 upon 7. Then find the value of the following ratio. So a upon b. So now solution. See, in previous sums, question number 1 में ना हमको डायरेक्ट a upon b का वैल्यू दिया था. But this time we have to find out value of a upon b. So let's see how we can find out. So this time what is given? This ratio is given. So 15a square plus 4b square upon 15a square minus 4b square is equals to 47 upon 7.
this thing is given to us. Okay, so therefore now what we will do, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फॉर्म में है, तो therefore इसको now see 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म जितना ये हमारा a हुआ और ये जो डिनोमिनेटर में वो हमारा b हुआ. सो ये डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बी लाइक प्लस. क्यों? कॉम्पोनेंटों में ऊपर हम प्लस करते हैं. ओके, एंड नीचे माइनस करते हैं. सो a प्लस बी a माइनस बी, हमने इस टर्म को कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो फॉर्म में लिख दिया. ओके, नाउ so this part will also be in componendo and dividendo form, प्लस एंड माइनस. यहाँ पे रीजन लिख देंगे बाय कॉम्पो एंड डिविडेंडो. ओके, सो नाउ ये ब्रैकेट पूरा ओपन करेंगे हम. ओके, सो यहाँ पे करते हैं व्हेन वी ओपन ऑल द ब्रैकेट्स. सो जब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, सो 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, बिकॉज ये एडिशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ के टर्म्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे. चेंजेस डिनोमिनेटर में आएंगे. नाउ फर्स्ट वाला एज इट इज, बट नाउ सी बिकॉज इट इज माइनस और ये ब्रैकेट में ये 15 पॉजिटिव में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस. ओके, सो नाउ हियर दिस इज इक्वल्स टू 54 एंड दिस इज इक्वल्स टू 40. सो अब क्या हुआ, यहाँ जो भी ऑपोजिट में देखो प्लस में है ये, सॉरी ये दो कैंसिल हो गया, जीरो बन गया. ओके, एंड सिमिलरली दिस एंड दिस कैंसिल. सो नाउ 15a स्क्वायर 15a स्क्वायर, 15 प्लस 15 30. ओके, सो हियर 30a स्क्वायर एंड 4 प्लस 4 8b स्क्वायर इक्वल्स टू 54 अपॉन 40. ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे जो वैल्यू है 30 अपॉन 80 उसको वहाँ से इस तरफ लेके आएंगे. सो वेन एवर दे आर चेंजिंग देयर प्लेस, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे, सो इट विल बी चेंज इट्स फॉर्म्स, वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो ये अपसाइड डाउन हो जाएगा. ओके, बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है. सो रेसिप्रोकल. एंड नाउ 8 1 8, 8 5 40, and this 6 5 30, 6 9 54. सो अभी ये जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, देखो ये स्क्वायर जब इसके ऊपर रूट में जाएगा, ओके, सो ये बन गया 3 और ये रूट में जाएगा तो 2 5 है, तो ये बन गया 5. मीन्स इन शॉर्ट पहले 9 1 9, 5 5 25. सो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 25. तो व्हाट वी विल डू, हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. ये जो स्क्वायर है ऐसे रूट में जाएगा 9 अपॉन 25 पे. तो a अपॉन b क्या मिल गया, 9 का रूट क्या है 3, 25 का रूट क्या है 5. ओके, सो ये आंसर मिल गया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स. ओके, सो a अपॉन b का वैल्यू मिला 3 अपॉन 5. सो आगे के सम ये 3 अपॉन 5 लेके सॉल्व करेंगे. मीन्स ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के हेल्प से हमने a अपॉन b ढूंढा. अब आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो a अपॉन b का वैल्यू होगा 3 अपॉन 5, जैसे वहाँ पे 7 अपॉन 3 था. ना सेकेंड सम 7a माइनस 3b, 7a प्लस 3b. अब
Now see, if you see this question carefully, you can see that componendo dividendo is given in reverse form. componendo और dividendo को उल्टे में दिया है, तो पहले हम सीधे में फाइंड आउट करेंगे. नाउ सी a अपॉन बी इज इक्वल्स टू 3/5. अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रॉम 1. ओके, आगे सारे सम्स में यही वैल्यू यूज करने वाले, तो हम फ्रॉम 1 लिखेंगे. तो देयरफॉर पहले हम इस चीज को कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फॉर्म में ही ढूंढेंगे. सो 7a, तो 7 इंटू 3, 3b, तो 3 इंटू 5, 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, मीन्स 7a अपॉन 3b का वैल्यू हुआ 21/15. ओके, सो देयरफॉर अब हम इसको 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फॉर्म में यूज करेंगे. सो हियर वी विल राइट बाय कॉम्पो एंड डिविडेंडो. ओके, सो इससे वैल्यू मिला 7a प्लस 3b अपॉन 7a माइनस 3b इक्वल्स टू 36 अपॉन 15, 6. Okay, so 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा. So therefore 7a plus 3b upon 7a minus 3b equals to 6 upon 1. ओके, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फॉर्म में हुआ, बट हमारा क्वेश्चन उल्टा है, ऊपर माइनस है और नीचे प्लस. सो सी हमने वी लर्न दिस, राइट, वी हैव लर्न दिस प्रॉपर्टीज. यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वन में क्या कहा था, a अपॉन बी को हम b अपॉन a लिख सकते हैं बाय इन्वर्टेंडो बोल के. सो व्हाट वी विल डू, हम इसको रिवर्स में लिखेंगे 7a माइनस 3b, the actual question which is given, and then we will write 1 upon 6, and here reason we will write by invertendo. Okay, by invertendo. Now see, b square minus 2a square, again they have given in reverse form. So a upon b का भी अभी हमने ढूंढा था 3/5 from 1. Okay, so here first of all a square upon b square, so that is a square means 3 square, 5 square, 3 3 is 9, 5 5 is 25. a square upon b square का we got value squaring both sides. Okay, so now what we will do, so रिवर्स में लिखेंगे. therefore क्योंकि यहाँ उल्टा दिया हुआ है, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 9, यहाँ पे रीजन देंगे बाय इन्वर्टेंडो. ओके, एंड देन नाउ सो व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन इज b स्क्वायर minus 2a square upon b square plus 2a square. So b square का we have 25 minus 2 into a square is what, 9. Same 25 plus 2, 9. So now 25 minus, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 25 plus 18. So 25 minus 18 is 7, and 25 plus 18 is 43. So therefore b square minus 2a square upon b square plus 2a square is equals to 7 upon 43. Okay, by invertendo. Okay, I hope you all have understood.
Third one, see again the sums is almost similar, that स्क्वायर की जगह में क्यूब दिया है इस टाइम. ओके, प्रीवियस सम्स में स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल a/b इज इक्वल्स टू 3/5 फ्रॉम 1. फर्स्ट सम्स में हमने ढूंढा था. तो देयरफॉर a³/b³. सो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 5 5s are 25, 25 5s are 125. क्या किया हमने, इनको 3 टाइम ये किया. तो यहाँ पे रीजन देंगे क्यूबिंग बोथ साइड. ओके, नहीं भी दोगे चलेगा. देन फिर व्हाट वी विल डू, ये फॉर्मूला में वो रिप्लेस करेंगे. b³ माइनस 2a³ upon b³ plus 2a³ is equals to b³ कितना है 125 minus 2 into a is how much 27. Similarly 125 plus 2 27. So that will be equals to b³ minus 2a³ upon b³ plus 2a³. Okay. So now 125 minus 27 2s are 50. So this is 54 and 125 plus 54. So that will be equals to, after subtracting 71 and after adding 179. So value मिला. सी मैथ्स नो, आप लोगों को ये आंसर और भी अलग अलग मेथड से मिल जाएंगे. सो दैट डजंट मीन्स कि आप लोगों का रॉन्ग है या मेरा रॉन्ग है, बिकॉज दिस सम्स यू कैन डू बाय मेनी अदर मेथड. सो बाय इन्वर्टेंडो. हियर वी कम टू एंड ऑफ पार्ट 1. We will continue in part 2 next question. Thanks for watching.